Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to go through the basics of mensuration. यहाँ पे हम सारे formulas देखेंगे and this video is going to be helpful for your upcoming entrance exam. First, we will go through all the formulas related to 2D mensuration, that is related to areas. पहले हम ट्राइंगल की बात करते हैं. ठीक है. इफ अ ट्राइंगल जिसका बेस मुझे पता है एंड उसका हाइट मुझे पता है, आई नो दैट द एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर कोई ट्राइंगल है जिसके मुझे तीनों साइड्स पता है ए बी सी, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी. इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना. पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स विच इज ए प्लस बी प्लस सी एंड सेमी पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, हाफ ऑफ पेरीमीटर. उस केस में एरिया कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी इन एस माइनस सी. This is the area of a triangle. You can use it like this as well. Then let us say if there is a triangle like this, इसका मुझे circumradius पता है. Circumradius is this. And we also know the sides of the triangle. Then area is ABC upon 4R, where capital R is your circumradius. And if let us say I have a triangle जिसका मुझे इन रेडियस पता है, इन रेडियस इज दिस एंड आई ऑल्सो नो द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, आई ऑल्सो नो द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. एरिया विल बी आर इंटू एस, है ना, वेयर स्मॉल आर इज योर इन रेडियस एंड एस इज योर सेमी पेरीमीटर ओनली. एस इज योर सेमी पेरीमीटर ओनली. ठीक है. अनदर फॉर्मूला इज AB sin theta, AB, and if this angle included is available, we can find out the area to be half AB sin theta. Half AB sin theta. Okay, है ना. But here the condition is if two sides are given, the angle included, मतलब बीच वाला एंगल ही आपको दिया हुआ रहना चाहिए. Only then you will be able to find out the area which is half AB sin theta. ठीक है. दिस इज वॉट वी नो अबाउट ट्रायंगल्स. आफ्टर ट्रायंगल्स विल गेट इन टू क्वाड्रिलेटरल्स, है ना. नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है. दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. दिस इज वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. दिस इज 90 डिग्रीज, लेट अस से ए, and this is 90 degree height, let us say B. ठीक है. area of the quadrilateral is half into one of the diagonals, half into one of the diagonals into sum of perpendicular from other two vertices to that diagonal. Sum of perpendicular. So this is one perpendicular, this is the other perpendicular. Sum of perpendicular from other two vertices to this particular diagonal. ठीक है. ये क्वाड्रिलेटरल हो गया. आफ्टर क्वाड्रिलेटरल वी हैव पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इज समथिंग लाइक दिस. हियर वी हैव ए, दिस इज बी एंड दिस इज हाइट h. ठीक है. एरिया कैन बी गिवन एच बी. ओके, 1 second. आई विल राइट दिस एज बी एंड दिस एज ए. So this is A, this is B. Okay. Area can be given as base into height. Area of parallelogram can be given like this, base into height. Area of parallelogram can also be given like this, AB sin theta, where this angle is theta. ठीक है. अगर मुझे A दे रखा है, I mean if I know the two adjacent sides of parallelogram and मुझे बीच का एंगल भी पता है, then I can easily find out the area of parallelogram which is AB sin theta. ठीक है. After parallelogram we have rhombus,
है ना. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पेरीमीटर. पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. सो rhombus looks something like this. This is one of the diagonals of the rhombus, this is the other diagonal. The diagonals of rhombus bisect at 90 degrees. Let us say one of the diagonals is D1, other diagonal is D2. Area is half into D1 into D2. Area of a diagonal is half into D1 into D2. After rhombus we have a rectangle. A rectangle is pretty easy. If this length and breadth is given to you, area is length into breadth. Perimeter is twice of length and breadth. Here all the sides of rhombus are same, so perimeter is 4a. इस तरीके से यहाँ पे भी अगर मेरे को पेरीमीटर निकालना है तो ट्वाइस ऑफ a प्लस b ऐसा आएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस b इस तरीके से आएगा. देन व्हाट वी हैव अ स्क्वायर. स्क्वायर का भी एकदम सिंपल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए. एरिया विल बी a square and perimeter will be 4a. After rhombus we have trapezium. Trapezium is also very easy, something like this, where A and B are your parallel sides. A and B are your parallel sides, and let us say the height is h, or distance between two parallel sides is h. Then area will be half into height into sum of parallel sides. ठीक है, मतलब एरिया कैसे निकलेगा, हाफ द इंटू हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स. ठीक है. एंड लास्ट इज व्हाट वी हैव इज काइट. काइट कुछ ऐसे रहती है. ठीक है. काइट में दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल रहते हैं, अदर टू एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल. डायगोनल्स are perpendicular, I mean diagonals are perpendicular to each other in a kite, and one of the diagonal bisects the other diagonal. तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, हाफ इंटू diagonal 1 into diagonal 2 only. Let us say this is diagonal 1 and this is diagonal 2, है ना, diagonal 1 and diagonal 2. ठीक है. सो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 ओनली. दिस इज हाउ यू गेट द एरिया ऑफ अ काइट. ठीक है. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो बाय पॉजिंग द वीडियो. आई एम गोइंग अहेड. नेक्स्ट इज सर्कल. सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है r. तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई r स्क्वायर. सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r or pi into d. D is what? Your diameter. Diameter is twice the radius. Now if I have to consider area of, let us say this is arc AB. And this central angle is theta. So length of arc AB, radius is r only, it is theta by 360 into 2 pi r. Theta by 360, this theta, which is the angle it makes with at the center of the circle, that r, whatever angle it makes at the center of the circle, that is your theta, divided by 360 into 2 pi r. Area of this sector OAB is theta by 360. Area of the sector is theta by 360 into pi r square. Theta by 360 into pi r square. ठीक है. एरिया ऑफ दिस सेगमेंट अगर मुझे निकालना है तो ये अगर ऐसा मुझे दे के रखा है, दिस इज द सेंटर. मुझे अगर एरिया ऑफ द सेगमेंट, दिस इज योर सेगमेंट, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है. दिस इज ऑल्सो ट्रू और दिस इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज 3D मेंसुरेशन विच इंक्लूड्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज. सो वी आर स्टार्टिंग विथ अ क्यूबॉइड. ये क्यूबॉइड है, ऐसा कुछ तो भी दिखता है. ठीक है. लेट अस से दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ, दिस इज द हाइट. ठीक है. क्यूबॉइड का वॉल्यूम is length into breadth into height. Area of base is length into breadth. Area या फिर lateral surface area, lateral surface area, it's है ना. lateral surface area, first try to understand what is the area of the four walls of the room in which you are sitting. That is your lateral surface area. Lateral surface area does not include your base, it does not include your top as well, है ना. वो तो हमारी राइट लेफ्ट की वॉल लेगा एंड फ्रंट बैक की वॉल लेगा. दैट इज हाउ यू विल गेट लैटरल सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया मतलब आपके वॉल्स का एरिया क्या है. तो इधर इस वॉल का एरिया बेस इंटू हाइट है ना. फ्रंट वॉल का एरिया लेंथ इंटू हाइट, फ्रंट वॉल का एरिया लेंथ इंटू हाइट. अच्छा, बेस इंटू हाइट न रे वाह. है ना. फ्रंट वॉल का एरिया लेंथ इंटू हाइट. अभी मेरे को बताओ, ये राइट वाले वॉल का एरिया बेस इंटू हाइट, तो लेफ्ट वाले वॉल का एरिया भी बेस इंटू हाइट रहेगा. ये फ्रंट वाले वॉल का एरिया बेस इंटू लेंथ इंटू हाइट, तो बैक वाले वॉल का भी एरिया लेंथ इंटू हाइट रहेगा. सो ये ट्वाइस हो जाएगा. ये जो है ट्वाइस हो जाएगा. करेक्ट है, कोई दिक्कत. अगर इसमें किसी ने तुमको पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो तो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपका ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है. टोटल सरफेस एरिया किसी ने पूछा, टोटल सरफेस एरिया अगर किसी ने पूछा तो क्या हो जाएगा. ये लैटरल सरफेस एरिया तो हो ही जाएगा, अभी बेस का एंड टॉप का भी एरिया उसमें ऐड हो जाएगा. तो ये ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी आ जाएगा. बेस का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, टॉप का भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फिर राइट साइड का ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेफ्ट साइड का भी ब्रेड्थ इनटू हाइट. सो बी एच हो गया ये. एंड फ्रंट का लेंथ इनटू हाइट, बैक का भी लेंथ इनटू हाइट, बैक का भी लेंथ इनटू हाइट. ऐसा आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया. अभी इसके आगे लैटरल सरफेस एरिया को एल ए से बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया को सी ए से बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया को टी ए से बोलेंगे. ठीक है. आप भी ऐसे ही नोट करो, आपको उससे फटाफट रिवीजन में हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज अ क्यूब. क्यूब इज अगेन वेरी इजी. समथिंग लाइक दिस a cube will look. तो दिस इज ए. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए क्यूब. एकदम सिंपल. मूविंग फॉरवर्ड, lateral surface area of the cube, lateral surface area of the cube will be area of the four walls, area of the four walls, area of the four walls is twice, I mean 4 times a square, है ना. लेफ्ट वाली वॉल ए स्क्वायर, राइट वाली ए स्क्वायर, फ्रंट वाली ए स्क्वायर, बैक वाली ए स्क्वायर, ऐसे टोटल 4 ए स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया ज़ीरो. कर्व्ड सरफेस एरिया ज़ीरो क्यों? क्योंकि क्यूब में सब कुछ फ्लैट है, देयर इज नो कर्व. एंड टोटल सरफेस एरिया दैट इज टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया दैट इज टी एस ए. तो इसमें लैटरल सरफेस एरिया भी आ गया, ऊपर और नीचे का भी आ गया. तो टॉप का ए स्क्वायर, बॉटम का ए स्क्वायर, टोटल 6 ए स्क्वायर ऐसा आ जाएगा. 6 ए स्क्वायर ऐसा आ जाएगा. ओके. एकदम सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर ये आपका ऐसा रहता है, ठीक है। सिलेंडर है, इसका बेस रेडियस r है और हाइट h है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h। इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब बेस एंड टॉप को हटा के, इट विल बी 2 पाई r h, है ना। इट विल बी, ये जो लेटरल सरफेस एरिया है, इट विल बी 2 पाई r h, which is going to be its curved surface area as well, which is going to be its curved surface area as well, ठीक है। it is going to be its curved surface area as well, which is 2 pi r h। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा तो लेटरल सरफेस एरिया आएगा प्लस बेस का एरिया आएगा, प्लस बेस एंड टॉप का एरिया आएगा, ठीक है। सो इट इज 2 पाई r h प्लस 2 pi r square, yes or no? It is 2 pi r h plus 2 pi r square। Why 2 pi r square? क्योंकि बेस का पाई आर स्क्वायर एंड टॉप का भी पाई आर स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा, जिससे मुझे टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू अ कोन, तो एक कोन ऐसा कुछ तो दिखता है, ठीक है। एक कोन ऐसा कुछ तो दिखता है। इसका बेस रेडियस इज r, इसका हाइट इज h। बेस रेडियस इज r एंड इसका हाइट इज h, एंड इसका लेटरल और स्लैंट हाइट इज l। इसको क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी? l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना। ये ऐसा परपेंडिकुलर रहता है, राइट परपेंडिकुलर कोन ऐसा हम बोल रहे हैं। सो एल स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। सो योर एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। योर एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम कितना रहता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज ऑलवेज 1/3 ऑफ दैट ऑफ अ सिलेंडर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। कोन का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना रहेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये है ना, ये जो है, जो गोल वाला पार्ट है, दैट इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल। दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल। मूविंग फॉरवर्ड to its total surface area. Total surface area will be curved surface area. जो curved surface area वो तो रहेगा ही, and base का भी area रहेगा, which is pi r square, है ना। pi r l plus pi r square, ओके। उसमें से आप pi r कॉमन लेके l plus r वो सब कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर कोन वी हैव अ स्पीयर। स्पीयर इज नथिंग बट एनी बॉल, है ना। स्पीयर इज नथिंग बट एनी बॉल, है ना। अर्थ इज अ स्पीयर, अ क्रिकेट बॉल इज अ स्पीयर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्पीयर। ये स्पीयर है, इसका रेडियस है लेट अस से r। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर। सो व्हेन आई हैव दिस बॉल, द ओवरऑल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट बॉल विल बी 4 पाई r स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इट्स टोटल सरफेस एरिया, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया वही रहेगा, सेम ही रहेगा स्पीयर का। एंड देन व्हाट डू यू हैव? यू हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू हेमिस्फीयर फर्स्ट, है ना। हेमिस्फीयर रह गया। हेमिस्फीयर, अ हेमिस्फीयर विल लुक समथिंग लाइक दिस, जिसका रेडियस यहाँ पे भी r रहेगा, यहाँ पे भी r रहेगा, है ना। एक आधा कटा हुआ बॉल यू कैन अज्यूम दैट, ठीक है। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा? 2 पाई r स्क्वायर, है ना। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा 2 पाई r स्क्वायर।
है ना, ये जो बेस ये जो नीचे वाला है वो कर्व रहेगा ना, इट विल बी 2πr²। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया लेना है सो इट विल बी 2πr², जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया है। एंड ये जो फ्लैट एरिया है ये भी तो πr² ही रहेगा, है ना, रेडियस इज r ओनली ना हियर, सो ये भी तो πr² ही रहेगा, ये भी तो πr² ही रहेगा। सो टोटल 3πr², टोटल सरफेस एरिया विल बी 3πr²। वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर विल बी half of this, that is 2/3πr³। volume of a hemisphere will be half of the volume of a sphere, which will be 2/3πr³। एकदम सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। राइट डाउन दीज फॉर्मूलेज, है ना, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। आई एम जस्ट गोइंग अहेड नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन। फ्रस्ट्रम मतलब एक कोन है, उसको ऐसे बीच में से काट दिया, तो वो फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन ऐसा कुछ तो दिखता है। फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन लुक्स समथिंग लाइक दिस, वेयर जिसकी हाइट रहती है h, ये रहता है लेटस से r1, ये रहता है लेटस से r2, एंड दिस l इज योर स्लांट हाइट, दिस l इज योर स्लांट हाइट। नाउ स्लांट सरफेस और या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन विल बी पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल, r1 प्लस r2 इंटू एल। देन टोटल सरफेस एरिया will be this slant area which is pi into r1 plus r2 into L. Then area of the top which is pi r1 square, and area of the bottom which is pi r2 square, ठीक है। Then volume of the frustrum is 1/3 pi r1 square plus r1 into r2 plus r2 square into height। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रम ध्यान से देखो, पाई इंटू 1/3 पाई इंटू r1 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 प्लस r2 स्क्वायर इंटू हाइट। दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रम। ठीक है, आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड टू अ पिरामिड। पिरामिड कैसे दिखेगा? ये ऐसा कुछ तो भी रहेगा, दिस इज हाउ अ पिरामिड में लुक, है ना, जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि यार बेस के सारे साइड्स इक्वल है, एंड दिस इज द स्लैंट हाइट, लेट अस से एल, कोई भी एज पकड़ लो, दैट इज योर, मतलब ये वाली, ये वाला जो रहेगा दैट इज योर स्लैंट हाइट, एल इज योर स्लैंट हाइट। एरिया ऑफ वन फेस ऑफ पिरामिड, एरिया ऑफ स्लैंट सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड, है ना, क्या बोलते हैं? स्लैंट सरफेस एरिया, स्लैंट सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या रहेगा? एक सरफेस का निकलते हाफ, ये स्लैंट हाइट L एंड बेस A, और ऐसे 4 स्लैंट सरफेसेस है ना, एक पीछे का, राइट लेफ्ट फ्रंट एंड बैक, ऐसे 4 है तो इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड विल बी ये स्लैंट सरफेस एरिया प्लस द एरिया ऑफ द बेस, सो 4 टाइम्स हाफ इंटू L इंटू ए, मतलब ये 2 इंटू L इंटू ए ऐसा ही हो जाएगा, प्लस A स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ द बेस इज A स्क्वायर। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज 1/3
इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना। हाइट क्या है तुम्हारी, ये वाली, दिस इज द हाइट ऑफ द पिरामिड, ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द पिरामिड। तो हाइट इज नथिंग बट जो पिरामिड का मिड पॉइंट रहेगा उधर से ज़मीन पे जो हाइट रहेगी वो, है ना। स्लांट हाइट विल बी पिरामिड का टॉप एंड जो स्लांट सरफेस है उसका बॉटम, दैट विल बी स्लांट हाइट। बट हाइट क्या रहेगी, सीधी सीधी जो हाइट रहेगी वो, ठीक है। तो ये थे पिरामिड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रम ऑफ कोन एंड पिरामिड में कंफ्यूज होते, तो ये 3 फॉर्मूले हैं उसके, ये आप अच्छे से लिख लो, याद कर लो, एकदम सिंपल फॉर्मूले हैं एंड यू विल बी गुड टू गो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।